So this is a class for open macroeconomic of semester 6, and this paper is in fact a continuity of what you have covered in semester 5 in the form of international trade. So earlier it used to be international economics having two sections. Now first section, which was theories of trade, now you have covered it in semester number 5. The second section having macro approach, now you are covering in a separate paper called open macroeconomics. So first of all, I will explain the content and weightage, pattern of examination, and what we have to cover in this open macroeconomics. But remember, it is part of your international economics. So international economics having two different parts, वो separate करके अब अलग अलग पेपर में पढ़ाए जाते हैं. And the problem with the previous semester 5 international trade, that there were two different sources, two different ratings. Paul Krugman की रेटिंग भी थी और गैंडाल्फो की रेटिंग भी थी. अब यहाँ पे mainly it is Paul Krugman, and for references only the Gandalfo has been mentioned, but you don't need to refer to it. So mainly all chapters are for only one source, that is Paul Krugman. So I will explain first of all the content, and then I will proceed with the lecture. So first of all, open macroeconomics, write down the content on your first page. Syllabus contains in fact 3 units. Unit number 1. Unit number 1 is a review of preliminaries. A review of preliminaries. Now in this unit, mainly the introduction of national income accounting, foreign exchange market, different instruments of foreign exchange, and the exchange rate determination, इन तीनों की बात होनी है. And the content includes chapter number 13, chapter number 14, and chapter number 15. Chapter 13, 14 and 15, all chapters from Paul Krugman. Chapter number 13, just write it down. Chapter number 13 is national income accounting and balance of payment. National income accounting and concept of balance of payment will be your chapter number 13. It is just introductory. You already know the meaning of balance of payment. National income accounting का concept भी है. So in that way it is preliminaries. Just you are revising that. So don't expect a major question from this chapters, which is an introduction to national income accounting and introduction to balance of payment. Chapter number 14 is exchange rate and foreign exchange market. Exchange rate and foreign exchange market. So we have to determine or explain what determine exchange rate and what are the other instruments involved in the foreign exchange market, like futures, options, currency swap. उनका meaning मालूम होना चाहिए, but it is mainly all about, we can say, interest parity condition. So interest parity condition, how exchange rate is determined by interest parity condition, that will be explained in chapter number 14. So chapter number 14 is all about interest parity condition, and chapter number 15 is money, interest and exchange rate. Chapter 15 is money, interest and exchange rate. Money, interest and exchange rate, that is chapter number 15. Chapter 13, 14, 15, ये तीन चैप्टर हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर. This chapter number 15 will be dealing about the money market. So exchange rate का जो determination, इसके अलग अलग principles हैं. Like one approach is interest parity approach, other is purchasing power parity approach. So in different chapter we are discussing different approaches to determine the exchange rate. And weightage for this first unit is 20 marks. So in bracket you can mention weightage of 20 marks. 20 मार्क्स का वेटेज है फॉर यूनिट नंबर 1. क्लियर.
Then second unit is a major one, unit number 2. Unit number 2 is open economy, macroeconomics and exchange rate. Open economy, macroeconomics. Open economy, macroeconomics and exchange rate. Exchange rate. In this second unit, you have to cover chapter number 16, 17 and 18. So chapter number 16, chapter number 17 and chapter number 18. 3 chapters here. And weightage for this section will be 35 marks. So just in bracket write down here, weightage will be 35 marks. Okay, almost you can say 50% content is unit number 2. 50% जो content है वो unit number 2 का है. And chapter number 16, 17 and 18. 16 is price level and exchange rate in long run. Price level and exchange rate. Price level and exchange rate in long run. तो यहाँ पे एक्चुअल में परचेजिंग पावर पैरिटी की बात ज़्यादा होगी. और चैप्टर नंबर 17 इज आउटपुट एंड एक्सचेंज रेट इन द शॉर्ट रन. 17 इज आउटपुट एंड एक्सचेंज रेट. आउटपुट एंड एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में आउटपुट और एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, विच विल बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द डिमांड शेड्यूल एंड ए शेड्यूल, जस्ट लाइक ISLM. तो जब आप ISLM का कंटेंट पढ़ते थे तो वहाँ पे आउटपुट और इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होता था. मतलब जब एक्सेस पे ड्रॉ करेंगे तो यू टेक इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, एंड हियर वी हैव टू टेक एक्सचेंज रेट एंड इनकम. सो हाउ आउटपुट एंड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द शॉर्ट रन. दिस विल बी अ मेजर चैप्टर. एंड चैप्टर नंबर 18 is fixed exchange rate and foreign exchange intervention. Fixed exchange rate, chapter 18. Fixed exchange rate and foreign exchange intervention. Foreign exchange intervention. Certainly intervention will be done by the central bank. So foreign exchange rate and foreign exchange intervention. So this is chapter number 18. 3 चैप्टर आपको यूनिट नंबर 2 में कवर करना, बट इसका वेटेज 35 मार्क्स है बिकॉज चैप्टर थोड़े लेंदी हैं, कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है. सो सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट ओपन मैक्रो इकॉनमी एंड द एक्सचेंज रेट. एंड द थर्ड यूनिट एंड द लास्ट यूनिट इन ओपन मैक्रो इकॉनमी, यूनिट नंबर 3. Unit number 3 is international macroeconomic policy. International macroeconomic policy. International macroeconomic policy. Now in this international macroeconomic policy, chapter number 19 and chapter number 20 and chapter number 22, 3 चैप्टर यहाँ भी है. चैप्टर 19, 20 and 22. चैप्टर नंबर 19, 20 and 22. चैप्टर 19 is international monetary system. International monetary system. एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देना है यहाँ पे, मॉनेटरी सिस्टम ओवरऑल इंक्लूडिंग दैट IMF and so on. Then chapter number 20 is financial globalization. Financial globalization, opportunity and crisis. Financial globalization, opportunity and crisis. And the last chapter is developing countries. Developing countries, growth, crisis and reform.
डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ, क्राइसिस एंड रिफॉर्म। करंट कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। तो ग्रोथ चैलेंजेस क्या क्या है, ओवरऑल क्राइसिस कैसे हुए, जैसे स्टेशन क्राइसिस है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, एंड द रिफॉर्म। सो दीज आर द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन योर ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर नंबर 6. So briefly I repeat, the content of macroeconomics has 3 unit. Unit number 1 has 3 chapter. It is all about a review of the preliminaries. Basic concept वहाँ पे recall करने हैं, including national income accounting or balance of payment. For that purpose, chapter number 13. Main chapter will be start from exchange rate and the foreign exchange market. Then money, interest and exchange rate. ये 3 chapter first unit के अंदर है, weightage of 20 marks. Unit number 2 is main. Chapter 16, 17 and 18, and third unit also has 3 chapters, chapter 19, 20 and 22, and the reference book is Paul Krugman. ठीक है, रेफरेंस बुक पॉल क्रूगमैन की है. ठीक है, रीडिंग इसमें ज़्यादा की ओएम लिखा हुआ है यार, रखिएगा. यहाँ पे एडिशनल रेफरेंसेस है, but only for references. Just I will show the list. ठीक है, ये करंटली अभी इस ईयर में कोई रिवीजन नहीं है. जो लास्ट मीटिंग थी वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली है, बट करंटली कोई रिवीजन नहीं है साइट के ऊपर, डी स्कूल के साइट के ऊपर नहीं है. एंड कोई चांसेस भी, मतलब अगर कोई चेंजेस होंगे तो विल बी इन्फॉर्मिंग यू, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज फॉर दिस ईयर. सो द सिलेबस इज बेसिकली कंटेनिंग यूनिट नंबर 1, a review of the preliminaries, chapter 13, 14 and 15. Second unit is open macroeconomy, chapter number 16, 17, 18, and international macroeconomics third, 19, 20 and 22. और रेफरेंस पे याद रखिएगा, यहाँ पे पॉल क्रूगमैन है, ऑस्टफेल्ड एंड पॉल क्रूगमैन. तो मेनली पॉल क्रूगमैन है. एडिशनल रेफरेंसेस में आ जाएंगे फिंस्ट्रा एंड गैंडेल्फो, बट ये रेफरेंस आपको सेमेस्टर 5 में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो, मतलब इट वाज अ डिफरेंट रीडिंग. बट इन सेमेस्टर 6 द ऑल चैप्टर्स यू हैव टू कवर फ्रॉम द पॉल क्रूगमैन. सिर्फ पॉल क्रूगमैन से रेफर करना है. ये एडिशनल रेफरेंसेस है, बट ओनली फॉर रेफरेंस से लिखा हुआ, सो यू कैन सिंपली इग्नोर दैट पार्ट. एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न इट इज रिटन देयर. Final semester 75 marks, weightage of the unit 20, 35 and 20. There will be 2 sections, part A and part B. Part A will contain short questions. You have to attempt 6 out of 5 marks each. तो 6 into 5 30 marks का section ये हो जाएगा part A. और 15 question of 15 marks के 3 question करने हैं out of 4. तो 2 section है, दोनों section में question का जो pattern होगा एक जगह आप फर्स्ट पेज के ऊपर लिख लेंगे, वहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न. एग्जामिनेशन पैटर्न इज दैट पार्ट ए. In that part A, you have to attempt 6 question out of given 8. 8 क्वेश्चन होंगे, आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एंड इट विल बी 6 into 5 मार्क्स ईच. 30 मार्क्स का पार्ट ए होगा. देन पार्ट बी यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन, एंड इट इज 3 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 क्वेश्चन. So you have to attempt 3 question. Each question will have 15 marks. 45 marks will be this. But question के सब parts possible है. It is not that 15 marks का एक single question है. उसके अंदर A, B, C ऐसे करके parts होंगे. 45 marks this and 30 marks this. ठीक है, ये structure हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए. क्लियर? जो डिवीज़न होगा वो 20, 35 और 20 का होना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए. तो उसका वेल रिप्रेजेंटेशन होगा सेक्शन ए के अंदर भी एज वेल एज इन सेक्शन बी. तो सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 3 यूनिट हैं. प्रेफरेबली यू विल गेट मोर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 2. सो यू विल बी गेटिंग 2 क्वेश्चन एट लीस्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 2 एंड 1 ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड द थर्ड यूनिट.
जो 4 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ दिए जा रहे हैं, इसमें याद रखिएगा यूनिट वाइज अगर आप डिवाइड करोगे तो एक्सपेक्ट बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 2 एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट एंड द लास्ट यूनिट। और यहाँ जो 8 क्वेश्चन है उस 8 क्वेश्चन में भी मेजॉरिटी क्वेश्चन की होगी फ्रॉम यूनिट नंबर 2, क्योंकि यूनिट नंबर 2 इज ऑलमोस्ट 50%। क्लियर? सो गिवन दिस नाउ वी कैन स्टार्ट विद द कंटेंट। नाउ कंटेंट बिगिंस विथ द फर्स्ट यूनिट which is national income accounting and the balance of payment। तो just is an overview। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का भी पढ़ा हुआ है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी पढ़ा हुआ है, उसको एक्चुअल में सिर्फ रिवाइज करना है यहाँ पे इन दैट फर्स्ट यूनिट। सो डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 13, बट सिंस इट इज पार्ट ऑफ द कंटेंट सो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। सो इट इज यूनिट नंबर 1 and chapter number 13, which is national income accounting and balance of payment। national income accounting and balance of payment। so I will just give you an overview। आपको बेसिकली वो पॉइंट रिकॉल करने हैं। तो जो नेशनल इनकम अकाउंट्स है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो that accounting is basically a framework that gives you various definitions like GDP, what is GDP, what is GNP, how to construct or calculate GDP or GNP। so these are basically in the form of accounting। the main concept is when we explain GDP or GNP, it all, as you know, it refers to the market value of all final goods and services produced, all final goods and services produced in the economy during an accounting period। so when we refer to the national product, gross national product, तो वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी होना है, विद इन दी इट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट देन इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो यू कैन स्टार्ट विद जस्ट द डेफिनेशन ऑफ 2 term। one important term is the gross national product। you can write down just the definition of GNP as explained in this chapter। so GNP refers to the market value of, just write down the definition, short definition। GNP refers to the market value of all final goods and services, all final goods and services produced by country's factor of production, produced by country's factor of production and sold in the market in a given time period, and sold in the market in a given time period, in a given time period। next is GDP। GDP refers to the market value of, GDP refers to the market value of all final goods and services produced, all final goods and services produced within the domestic territory, within the domestic territory, within the domestic territory during a given accounting period, during a given accounting period। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का जो मनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, दैट इज बेसिकली नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो यू नो ऑलरेडी द डेफिनेशन ऑफ GDP एंड द GNP। नाउ बेसिकली वी आर एक्सप्लेनिंग द नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर एन ओपन इकोनॉमी। सो वी हैव टू एक्सप्लेन नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर ओपन इकोनॉमी। national income accounting for an open economy। now when we calculate, remember जब आप इकोनॉमी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, GDP या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो ऑल्दो इनकम कैलकुलेट करने के ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। सो वी कैन कैलकुलेट GDP फ्रॉम इनकम मेथड, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, or you can calculate it with the expenditure method। here we are basically focusing on that expenditure method। मतलब जो स्पेंडिंग है वो डिटरमाइन करेगा हमारे GDP को। तो स्पेंडिंग इज बेसिकली ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट क्वेश्चन इज हु इज बाइंग दोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन,
It can be purchased by firm for investment. It can be purchased by government for consumption and investment both. It can also be purchased by foreigners, because in an open economy foreigners can buy our domestic product. तो जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इनफैक्ट जीडीपी इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय, जीडीपी एक्चुअल में इनकम हो गया, एंड दैट इनकम इज डिटरमाइंड बाय स्पेंडिंग ऑन domestic good, spending on domestic good है वो. But who is spending on our domestic good? Domestic good can be purchased by the household. तो household purchase of domestic good, D का मतलब on domestic good है. But always remember, when household purchases in an open economy, purchase of household will include purchase of domestic good as well as purchase of foreign produced goods. In an open economy you are purchasing domestic good as well as you are buying foreign goods, but here you are writing only purchase of the domestic good, spending on domestic good है वो, because spending on domestic good will generate domestic income. So consumption spending on domestic good plus investment spending on domestic good, but investment के अंदर भी दो component होंगे. There could be purchase of domestic machinery, there could be purchase of foreign machinery by the firm. Similarly, there will be spending by the government, and foreigners can purchase our domestic good, which is nothing but export. तो अब अगर आप इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे सी डी, रिमेंबर जो कंप्लीट कंजम्पशन स्पेंडिंग होता है ओपन इकोनॉमी में उसमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इंक्लूडेड है. बट अगर मैंने यहाँ पे ओनली सी डी लिखा है तो इसका मतलब है कंजम्पशन माइनस सी एफ कर लोगे आप. टोटल कंजम्पशन स्पेंडिंग से जो परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स है वो माइनस करेंगे तो परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओनली कैलकुलेट हो जाएगा. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट से माइनस करोगे आप ये अमाउंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे हम जीएफ प्लस एक्सपोर्ट. सो नाउ यू कैन राइट इट एज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और माइनस में ये तीनों नंबर आ जाएंगे, माइनस सी एफ माइनस आई एफ माइनस जी एफ, और कलेक्टिवली अगर आप इसको ब्रैकेट में ले तो यहाँ साइन प्लस कर देना. सो इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस परचेज ऑफ एनी फॉरेन गुड बाय हाउस होल्ड और बाय फर्म और बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. इनकम को वाई से डिनोट कर दिया मैंने. तो इक्वेशन एक्चुअल में आप मैक्रो से में हमेशा से लिखते आ रहे हो, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, रीजन क्लियर है, ऑलरेडी आपने पहले कर रखा है. वी आर जस्ट रिवाइजिंग दैट पार्ट इन दिस लेक्चर. सो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो जो जीडीपी है उसके अलग अलग कंपोनेंट हो गए, कंजम्पशन स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट. तो आपको ये टर्म पहली बात तो यहाँ से फेमिलियर होना है. अब इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, व्हाट हाउ वी कैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली. इन दैट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिस विल बी योर फर्स्ट वी कैन से नोट. नाउ मूव टू द अदर पार्ट, सेकेंड नोट. ठीक है, पहली क्लास से सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, अदरवाइज क्लास के अंदर पूरा कंटेंट होगा, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट सेक्शन आएंगे उसका इलाबोरेशन मिलेगा. नाउ व्हेन वी राइट इट एज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो आप x माइनस एम की जगह लिख सकते हो x माइनस एम इज इक्वल टू इनकम माइनस सी प्लस आई प्लस जी. ठीक है, y इनकम हो गया जीडीपी, और c प्लस आई प्लस जी इज स्पेंडिंग, एंड इट इज स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट, स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट बिकॉज डोमेस्टिक रेजिडेंट इज हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट. और x माइनस एम, दैट x माइनस एम इज नथिंग बट योर करंट अकाउंट बैलेंस CA. ये करंट अकाउंट बैलेंस है हमारा. ये करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज इनकम कैन बी मोर देन स्पेंडिंग और इनकम कैन बी लेस देन स्पेंडिंग. तो योर करंट अकाउंट बैलेंस इज बेसिकली इनकम माइनस स्पेंडिंग. करंट अकाउंट बैलेंस हो गया इनकम माइनस स्पेंडिंग,
वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। इसे आप अलग अलग फॉर्मेट में बेसिकली क्या करना है, वी आर जस्ट लिंकिंग और इंटरप्रेटिंग दैट टर्म करंट अकाउंट इन डिफरेंट वे। सो व्हेन वी एक्सप्लेन द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट फॉर्मेट, तो करंट अकाउंट एक्चुअल में हो गया ये सी, करंट अकाउंट जो हो गया एक्स माइनस एम, वो हो गया वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। अब इसी टर्म को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, उसको आप सेपरेट नोट में कर सकते हो। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में मैं दोबारा से वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू, करंट अकाउंट बैलेंस का इक्वेशन लिखा है इनकम माइनस सी प्लस आई प्लस जी। सो वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब जरा ध्यान से जाओ, ऐसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ y इक्वल टू सी ए इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी, ये नंबर मैंने अलग कर दिया, और माइनस आई। अब यहाँ जो नंबर लिखा है ना y माइनस सी माइनस जी, दिस नंबर इज नथिंग बट नेशनल सेविंग। आई विल एक्सप्लेन वाई एंड हाउ, why that's y minus c minus g is called national saving. ठीक है, but just wait for a minute. So this current account balance is equal to saving minus investment. That means if economy is saving more, investing less, इकॉनमी ने सेव ज़्यादा किया और इन्वेस्ट कम किया तो करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव रहेगा। बट अगर इकॉनमी ने सेव ज़्यादा किया और इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है तो वो अमाउंट हमने एक्चुअल में लेंड कर दिया, फिर फॉरेनर्स को लेंड कर दिया है। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं और सेविंग कम है तो हाउ वी कैन इन्वेस्ट मोर देन व्हाट वी हैव सेव्ड, ओनली व्हेन यू बोरो। तो जब करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव है, जब सी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ये नंबर अगर आप पॉजिटिव लिखते हो तो पॉजिटिव लिखने का मतलब हो गया यू आर बेसिकली अ नेट लेंडर, और अगर नेगेटिव लिखते हैं देन यू आर बेसिकली अ नेट बोरोवर। तो फॉरेन इंडेटेडनेस को भी बेसिकली वो एक्सप्लेन करता है। अब पॉइंट ये बनता है कि हमने y माइनस सी माइनस जी की जगह सेविंग लिखा क्यों है, वाई वी हैव रिटन दैट टर्म। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इनफैक्ट जो नेशनल सेविंग है याद रखेंगे, दैट नेशनल सेविंग इज सम ऑफ प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग। वो गवर्नमेंट सेविंग और प्राइवेट सेविंग का सम होता है। प्राइवेट सेविंग मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए, और सेविंग फॉर गवर्नमेंट, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इकॉनमी का नेशनल सेविंग आ जाएगा। क्लियर? अब इस पार्ट को पहले यहाँ समझ लेना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेविंग एंड व्हाट इज गवर्नमेंट सेविंग। व्हेन वी एक्सप्लेन द प्राइवेट सेविंग, तो प्राइवेट सेविंग इज बेसिकली इनकम, इनकम से टैक्स माइनस करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम हो गया। डिस्पोजेबल इनकम कैन बी स्पेंट और इट कैन बी सेव्ड, तो वहाँ से आप कंजम्पशन माइनस कर लो, तो जो अमाउंट बच गया वो हमारा प्राइवेट सेविंग हो गया। इनकम, रिमेंबर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड अर्न ऑल द इनकम, स्टे वाई इनकम लिखा है यहाँ पे, हाउस होल्ड अर्न बेसिकली ऑल द इनकम, आउट ऑफ दैट इनकम यू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, वो पर्सनल डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनकम माइनस टैक्स दैट विल बी योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल वर्ड यूज़ हो रहा है मतलब वो हाउस होल्ड के लिए। इनकम माइनस टैक्स कर दिया, वो डिस्पोजेबल इनकम हो गया। फ्रॉम दैट यू सब्ट्रैक्टेड कंजम्पशन टू गेट द प्राइवेट सेविंग। देन इन दैट प्राइवेट सेविंग ऐड गवर्नमेंट सेविंग। तो व्हाट विल बी द गवर्नमेंट सेविंग? गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या है? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा उसका टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन इज वन, आउट ऑफ दैट टैक्स गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड, तो गवर्नमेंट के टैक्स से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग माइनस कर दी मैंने, जो रिमेनिंग रह जाएगा पॉजिटिव है तो वो गवर्नमेंट की सेविंग हो गई। अब इन दोनों सेविंग को अगर आप ऐड कर लो तो ऐड कर लेंगे, देन यू विल गेट दी नेशनल सेविंग। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नेशनल सेविंग? ध्यान से देखना, ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो टी कैंसिल आउट हो गया, देन इट इज वाई माइनस सी माइनस जी।
तो दैट y माइनस सी माइनस जी इज नथिंग बट national saving denoted by S. So S is y minus c minus g, y minus c minus g, ये ओवरऑल इकोनॉमी का नेशनल सेविंग हो गया। तो जहाँ कहीं भी y माइनस सी माइनस जी लिखा है उसकी जगह आप S से रिप्लेस कर सकते हो। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे किया y माइनस सी माइनस जी लिखा था, उसको S से बेसिकली क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज बेसिकली योर ओवरऑल अमाउंट ऑफ सेविंग। क्लियर? तो एक पॉइंट बेसिकली यहाँ पे सिर्फ रिलेट करने के लिए ये दिया गया है, और आफ्टर दैट इज ऑल अबाउट, मतलब इसको आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इसमें याद रखने का तरीका ये है कि हमने इनकम को लिखा पहले C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, फिर इनकम माइनस C प्लस आई प्लस जी कर लिया, वो हो गया x माइनस एम के बराबर। ये x माइनस एम लिख दिया करंट अकाउंट बैलेंस, और y माइनस सी माइनस जी इसको सेपरेट कर लेंगे माइनस आई, इसकी जगह लिख दिया s माइनस आई इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस। सो सेविंग इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। जो इकॉनमी के अंदर सेव होता है या तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर डोमेस्टिक फर्म को मिलता है, या फिर अगर करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव है तो हमने लेंड कर रखा है। तो जो हाउस होल्ड की सेविंग है, दैट सेविंग इज एलोकेटेड और इट इज गिवन टू डोमेस्टिक फर्म टू क्रिएट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और इट कुड बी लेंडेड अब्रॉड ऑल्सो so that foreigners can invest more. So saving is basically that current account balance plus investment amount. ठीक है? तो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसको पढ़ने का पर्पस एक्चुअल में सिर्फ क्या है कि लेटर ऑन चैप्टर के अंदर जो चैप्टर आपने लिख रखा है उस चैप्टर में कहीं कहीं अगर इसका यूज़ होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वाई यू हैव रिटन सेविंग इन प्लेस ऑफ वाई माइनस सी माइनस जी एंड व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल सेविंग एंड सो ऑन। तो यहाँ तक का कंसेप्ट बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए दिया गया है, और द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, एज यू ऑलरेडी नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट, it is basically a systematic record, and what does it records? It records all the economic transactions between resident of one country and residents of rest of world during an accounting period. I repeat, it is a systematic record of all economic transactions between residents of one country and residents of rest of world during an accounting period. So you can write that definition. Balance of payment is a systematic record of, balance of payment is a systematic record of, balance of payment is a systematic record of all economic transactions, all economic transactions between, all economic transactions between residents of a country, residents of a country and residents of rest of world, and residents of rest of world during an accounting period, during an accounting period, during an accounting period, full stop. BOP account provide, BOP account provide a detailed picture of, BOP account provide a detailed picture of composition and financing of current account, composition and financing of current account, composition and financing of current account. अब ब्रॉडली आपको मालूम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली दो अकाउंट होते हैं, जैसे आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कहते हैं, बट ये बुक बेसिकली यूएस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। तो जिसे हम इंडियन कंटेक्स्ट में कैपिटल अकाउंट कह रहे हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट लिखा है। मतलब करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स लेते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज हमने इंपोर्ट किए। और जो फाइनेंशियल जो कैपिटल अकाउंट होता है इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्विंग सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स लाइक बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करें वो आप ओन पर्सपेक्टिव में, जैसे आपने डॉन बुश की बुक पढ़ी या दूसरे बुक में वहाँ पे जब पढ़ते हैं तो
वहाँ पे आप उसे कैपिटल अकाउंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के यू नो दैट इज देयर टू अकाउंट, करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. हियर इट टॉक्स अबाउट करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, बट वो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सेपरेट इंटरप्रिटेशन है. तो ब्रॉडली से प्यार रखिए कि हमारे पास दो अकाउंट है. करंट अकाउंट इन्वॉल्व्स सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. तो मतलब अगर आप इसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं तो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड में क्या होगा, एक रिसिप्ट साइड आ जाएगा और एक पेमेंट साइड आ जाएगा. सो इन द रिसिप्ट साइड एंड इन द पेमेंट साइड व्हाट यू विल राइट? इन द रिसिप्ट साइड यू विल राइट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. सो बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स यू विल रिसीव फॉरेन करेंसी. Import of goods you have to make payment. Second, export of services, import of services. Third, transfer payments received like remittances, transfer payments made abroad, foreigners working in India sending money back to their home. Investment income, I am not using investment, investment income मतलब बॉन्ड अगर बाई किया उसका एनुअल जो रिटर्न आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट इनकम है. परचेज ऑफ बॉन्ड कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड. तो ये चार ट्रांजेक्शन जो हो जाते हैं वो एक्चुअल में हमारा करंट अकाउंट बन जाता है. और उस करंट अकाउंट के बाद जो ट्रांजेक्शन आ गया वो कैपिटल अकाउंट इन नेचर हो गया. जैसे सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स हो गए. कोक परचेजिंग लैंड इन इंडिया वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन है. रिलायंस परचेजिंग लैंड इन यूके फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. तो जिसके मेजर वे में जिसको हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट कह रहे हैं वो आपको मालूम है कि वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है. तो मेजरली बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट हैं एंड द सम ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू, मतलब बैलेंस होने के लिए एक्सटर्नल बैलेंस रिक्वायर करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, बट वो अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है. इट इज बैलेंस इन द अकाउंटिंग सेंस. इन इकोनॉमिक सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट बैलेंस, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा. तो जो इम्बैलेंस होता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप कहते हैं कि बीओपी के अंदर दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं. एक को कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन और एक होता है अकोमोडेटिंग. सो व्हाट इज ऑटोनॉमस एंड व्हाट इज अकोमोडेटिंग? ऑटोनॉमस वो होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंसिडरेशन से इंडिपेंडेंट है. जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट किया, उसके पास एक सर्टन रेवेन्यू आई, उसका बीओपी कंसिडरेशन से कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली इम्पोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किया, एक सर्टन रेवेन्यू हमने पे किया, अमाउंट पे किया फॉरेन करेंसी का, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन. तो जो रिसिप्ट साइड होगा उसमें कुछ ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आ जाएंगे, कुछ ऑटोनॉमस पेमेंट्स आ गए. तो इफ आई से दैट दोज autonomous receipts and autonomous payment. रिमेंबर जो रिसिप्ट्स होना है वो एक्चुअल में सप्लाई ऑफ डॉलर है और जो पेमेंट है वो डिमांड फॉर डॉलर है. तो ये एक्चुअल में हमारा डिमांड साइड हो गया और ये सप्लाई साइड है. नाउ इफ ऑटोनॉमस पेमेंट्स आर मोर एंड ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर लेस, that means we have to make more payment outside and we are receiving less. So supply of dollar is less and the demand for dollar is more. So question is from where you will get that additional dollar. Now that additional dollar can come from borrowing from abroad, but if that borrowing is done just in order to meet this gap, then that transaction is called as accommodating transaction. It is done in order to accommodate the imbalance between these two. अगर ये ऑलरेडी बैलेंस होते तो उस बॉर्विंग की जरूरत नहीं होती. मतलब वो जो बॉर्विंग हो रहा है वो एक्चुअल में जस्ट टू अकोमोडेट दिस इम्बैलेंस है. तो जितने का अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है. सो इफ दैट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इज बेसिकली बॉर्विंग, या फिर सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को डिप्लीट करे, वहाँ से भी ये गैप पूरा हो सकता है, बट वो भी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के नेचर में आ जाएगा. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली इम्बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एंड ऑटोनॉमस पेमेंट्स. सो कैन जस्ट राइट डाउन दैट पॉइंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस is basically, balance of payment imbalance is basically imbalance of
is basically imbalance of autonomous receipts and autonomous payments. Imbalance of autonomous receipts and autonomous payments. To meet that gap, accommodating transactions are made. To meet that gap, accommodating transactions are made. Clear? Now, other basic information about balance of payment is, रिमेंबर इंडिया से जो भी ट्रांजेक्शन आपने जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा, जो रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड बेसिकली इनफ्लो ऑफ डॉलर हो गया और पेमेंट है वो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है. बट ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर विल ऑलवेज बी थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट विल ऑलवेज बी थ्रू RBI. वो हमेशा सेंट्रल बैंक के थ्रू होना है, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज. तो डॉलर का अगर इनफ्लो हो रहा है, so if dollar is coming by export of goods, export of services, whatever be, उस डॉलर को सेंट्रल बैंक अपने पास रखेगी और सेंट्रल बैंक उसे रुपये में कन्वर्ट करके डोमेस्टिक रेजिडेंट को देता है. क्लियर? अगर हमें पेमेंट करना है बाहर, आउटसाइड, देन वी विल गिव रुपी टू द RBI and RBI will convert it in terms of dollar and payment will be made from that. Now suppose for example on 1st of April 2023, मान लेते हैं कि नेक्स्ट इस ईयर 1 अप्रैल को फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो सेंट्रल बैंक के पास $1,000 का है, और 31st of March 2024 नेक्स्ट ईयर अगर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व डिप्लीट होकर के ओनली 800 है जाए, तो आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 to 31st March 2024, during this period the outflow was more and the inflow was less. तभी तो रिजर्व डिक्रीज हो गया. जो स्टॉक था ड्यूरिंग द पीरियड देयर विल बी इनफ्लो, देयर विल बी आउटफ्लो. But if the reserve is declining, it means outflow is more and the inflow is less. तो currently भी जैसे if you are familiar with the current data about the foreign exchange reserve, we find that the foreign exchange reserve, the central bank is declining over the last 5-6 months. तो अगर वो डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अगर डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब है जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है और जो इनफ्लो है वो कम हो रहा है. इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास डिक्रीज हो रहा है. तो जितने से डिक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग अ ईयर, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑल्सो. तो ये हमारा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन हो गया. मतलब BOP डेफिसिट निकालने के अलग अलग तरीके हैं. वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इज इन टर्म्स ऑफ दिस ऑटोनॉमस पेमेंट्स, ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर डिफरेंट. अदर वे इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स. तो जो ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांजेक्शन है, ऑफिशियल रिजर्व सेटलमेंट है, वो एक्चुअल में ये अमाउंट होता है. अगर आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है तो डेफिसिट है. इनफ्लो ज़्यादा और आउटफ्लो कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ जाएगा. दैट विल इंडिकेट दी सरप्लस. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस भी पॉसिबल है और डेफिसिट भी पॉसिबल है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन द चैप्टर नंबर 13. So chapter number 13 basically just you have this has been included in order to make you aware about the developments what we have already covered. ये सारे टॉपिक आपने पहले कवर किए हुए हैं. So don't expect a major question from this chapter number 13. तो ये मैंने ओवरऑल कंटेंट के लिए ओपन मैक्रो इकॉनमी में ये वाला पार्ट सिर्फ कवर किया चैप्टर 13. मतलब इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो डिटेल पढ़ने के लिए. इनिशियल जब कंटेंट कम होता है तो 1-2 क्वेश्चन टेस्ट वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं. बट ओवरऑल द मेजर क्वेश्चन इन दिस यूनिट विल बी फ्रॉम एक्सचेंज रेट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इंटरेस्ट पैरिटी अप्रोच यहाँ एक्सप्लेन करनी है और फिर मनी इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट. सो दीज 2 चैप्टर विल बी बेसिकली द कोर फॉर दिस यूनिट नंबर 1. बट over a period of time in different chapter we will be referring to that national income accounting, we will be referring to that current account balance
will be referring to that saving investment gap equal to. So for that purpose we have covered chapter number 30. Clear? So in this orientation class I have just introduced you about the open macroeconomy. Major way content will be starting from lecture number 2 from chapter number 14, and I repeat the again one more point that the all references, all chapters will be basically from the Paul Krugman. यहाँ पे आपको जो लास्ट में रेफरेंसेस गिवन है, तो गैंडोल्फो की रीडिंग आपने ओनली सेमेस्टर 5 में रेफर किया फॉर theories for few chapters, but you don't have to cover it in semester 6. And other information that apart from this open macroeconomy in semester 6 you will be getting lectures of developmental economics plus Indian economy. ये दो core subject हो गए, और जो optional आपने choose किया, like if you are choosing this open macroeconomy you can take this, or if you have opted for environmental economics then you can take, or if you have opted for money and financial system then that lecture is also available. So obviously जो the support that we will be providing you will be basically through online. So lectures will be online, and for all those chapters mentioned here in this open macroeconomy, detailed written notes will be there along with your lecture, and we will be trying to provide you the आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द योर चैप्टर. बट ज़्यादातर वो एज इट इज़ पूछे नहीं जाते. पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसका नेचर स्लाइटली डिफरेंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको मालूम है. बट विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्टेन सॉल्यूशन टू दोस चैप्टर्स. जो मेजर क्वेश्चन होंगे उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर. रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में याद रखिएगा ओनली द मैक्रो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. मतलब ओल्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 2 सेक्शन थे, तो 1 सेक्शन आपने इंटरनेशनल ट्रेड में कर लिया, सेकंड सेक्शन की बात होगी. तो मैं वो सेपरेट करके ट्राई करूंगा कि आपके पोर्टल में वो वाले क्वेश्चन जो पहले आ रखे हैं, बिकॉज रेफरेंस बुक वही है, चैप्टर्स वही है, तो वो वाले क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल कर देंगे, सिर्फ मैक्रो वाले क्वेश्चन होगा उसको सेग्रीगेट कर लेंगे, और वो वाले क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है. सो विल कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 14 in the next class. Thank you.